Hello students, my name is Pavan Chaudhary and I am from Sri Guru Kripa Vidya Sankul, and today I am going to teach you physics in that will study current electricity. तो start करते हैं topic electricity. In electricity we'll start with electric charge. You might have familiar with the examples like while we are removing a shirt, our hairs get attracted towards the nylon shirt or polyester shirt. So what is that thing which attracts our hair towards the shirt? So that is nothing but charge. So we'll study what is electric charge. Electric charge is first of all denoted by the symbol capital Q or small q. We can use both the denotions, capital Q or small q. It is used for electric charge, and the unit of charge is coulomb, named after the scientist Coulomb. It is measured in coulomb and denoted by the symbol capital C. Okay, so these are the basics of charge. First of all, we studied how it is denoted by capital Q, and then the unit of charge is coulomb. There are other smaller units also, microcoulomb, millicoulomb, that we'll see later. Now, these are the three particles: electron, proton and neutron. Atom consists of all these three particles, and the charge and mass of these particles you have to keep in mind always while solving the numericals related to this topic. So first of all, we'll see what is the charge of electron. The charge of electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So the charge on electron is negative, while proton, the charge is same but positive polarity. It is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The charge on proton is positive charge. A neutron is having no charge. It is electrically neutral. Now let's jump to the mass. The mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Students, you have to keep in mind the unit also, kg, it is kg, not gram. And proton, it is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. And the mass of neutron is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. You can see that the mass of proton and neutron is almost same. Here I had written exactly same, but there is slight variation in their masses. Proton is slightly lighter than neutron. It is 1.672, and for neutron it is 1.675. You can also keep this in your mind, like you can remember, like a neutron, when it is split into two parts, it gets splitted into proton and electron. So neutron is a heavier particle. Its two portions are proton and electron. So, but obviously proton will be lighter because it is a part of neutron. So these are the charges and masses of the three particles, and you have to keep this thing in mind. Next, what I already told you, the charge on the proton is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, which is same in magnitude. It is same in magnitude, but is having different polarity. Magnitude is same, that of electron. Now, as I told you, atom is made up of these three particles, which are proton, neutrons and electrons. Proton is having positive charge, neutron is having no charge, while electron is having negative charge. See, positive charge and negative charge does not mean that they are having different properties or like that. But see, if a body is having plus 5 coulomb charge and minus 5 coulomb charge, means the charge on both the bodies is same. A positive and negative only will indicate that one is repelling something and other one will attract that thing. Okay? So don't get confused that minus 5 is less than plus 5. So body having minus 5 coulomb charge will have less charge. Both are having same charges. Okay? Next is the plum pudding model. Thomson. J.J. Thomson gave the first structure of atom, and according to him, atom is like a plum pudding. Plum pudding model means bread वगैरह जो होता है उसमें टूटी फूटी जो होता है वो stuffed होता है. So उसको foreign में plum pudding कहते हैं. ठीक है. सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो वाटरमेलन, तरबूज जो होता है उसको आप
कंसिडर करो, तरबूज में जो बीज होते हैं वो हमारे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो तरबूज के बीज हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो एम्बेडेड है वो वाटरमेलन में जो अंदर बीज होते हैं वो हो जाएंगे, और जो ये रेड रेड आपको दिख रहा है वो वाटरमेलन के अंदर जो रेड रेड होता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट इज रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसे पता चला था कि जो एटम है उसका ऑलमोस्ट मेजॉरिटी स्पेस जो एम्प्टी है। अकॉर्डिंग टू हिम अ पॉजिटिव रीजन इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। एक स्फीयर है उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है, इवन द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। तो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज भी है और मास भी है। और यहाँ पे थोड़ा और भी ये बड़ा बताया, पर एक्चुअली आप समझो एक डॉट जैसा बना दो, इस डॉट में पॉजिटिव चार्ज है और पूरा मास जो है एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो चारों तरफ है। और अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गोल गोल घूम रहे हैं और वो घूमते घूमते एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिम, और जितना पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का है, तो एटम इज न्यूट्रल। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल। तो सबसे पहले जे थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन किया एटम के बारे में, नेक्स्ट इज रदरफोर्ड मॉडल, और उसके बाद आया बोर मॉडल। तो बोर ने सिर्फ एक चीज को एलिमिनेट किया एंड दैट इज कि जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के, तो उसको एलिमिनेट किया बोर भाई साहब ने, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो रेड और ब्लू है दीज आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और पॉजिटिव जितना चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, एंड हेंस द एटम इज न्यूट्रल। और एटम न्यूट्रल होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी बॉडी जो होती है वो ढेर सारे एटम से बनी हुई होती है, तो एटम न्यूट्रल है तो वो बॉडी न्यूट्रल होती है, और वो बॉडी न्यूट्रल होती है इसलिए हम लोग उसको टच करते हो तो हमें शॉक नहीं लगता है, ठीक है। तो न्यूट्रल बॉडी जो है वो वही बॉडी है जिसको हम लोग टच कर, जैसे ये पेन वगैरह मैंने अभी टच करके रखा, मुझे कोई शॉक नहीं लग रहा है, तो ये पेन जो है वो न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी को अगर आपको इमेजिन करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि जितना पॉजिटिव चार्ज अंदर है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। आप पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ में इमेजिन कर सकते हो, प्लस माइनस, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। तो जब भी न्यूट्रल बॉडी का जिक्र हो तो आपके दिमाग में ये पिक्चर आनी चाहिए कि न्यूट्रल बॉडी मीन्स अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल है। सॉरी। नेक्स्ट इज चार्ज बॉडी। अभी हमने पढ़ा न्यूट्रल बॉडी जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल था, तो नेट चार्ज क्या था, 0। पर अब हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ज बॉडी, और उसमें सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ध्यान से सुनना, अभी मैंने देखा कि न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम होता है। अब आप इस न्यूट्रल बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दो, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिमूव कर दोगे तो अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। हाँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ प्लस माइनस भी हो, पर हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, राइट। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये बॉडी में जो है इधर न्यूट्रल है और ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। तो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाते हैं, मतलब उस बॉडी में अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज ओनली व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नेक्स्ट इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी। सो जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जब बॉडी के अंदर आते हैं तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है। तो ये हमारे पास अभी न्यूट्रल बॉडी है जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब मैं इस बॉडी में बाहर से इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं बाहर से इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई करता हूँ तो बॉडी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि जो प्लस माइनस है वो कैंसिल कर रहे हैं, पर ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको नलीफाई करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। सो बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए आप कह सकते हो कि बॉडी इज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप छोटी क्लासेस में भी ये प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ते रहते हो। ऑपोजिट चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर,
पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है और नेगेटिव नेगेटिव जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और इवन पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, मतलब लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप फ्यूचर में हो सकता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ो, तो क्वांटाइजेशन वर्ड जब भी यूज होगा तो आपको ये समझना है कि वो जो चीज है जिसके हम लोग क्वांटाइजेशन पढ़ रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, तो जो चार्ज जो चीज है वो छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाती है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज इज अवेलेबल इन स्मॉल पैकेट्स। चार्ज जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में अवेलेबल होता है और सबसे छोटा जो पैकेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज है, इसका मतलब किसी भी बॉडी में अगर सबसे पहले कोई चार्ज जाएगा तो वो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। उसके बाद अगर हम उस बॉडी को और चार्ज कर रहे हैं तो उस बॉडी में हो सकता है दूसरा चार्ज चला जाए। जब बॉडी में दो चार्ज जाते हैं तो हम लोग लिखेंगे द चार्ज ऑन द बॉडी इज 2e। तीसरा चार्ज अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हम लिखेंगे चार्ज ऑन द बॉडी इज 3e। इसी तरीके से अगर n इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में चले गए हैं तो हम लोग लिखेंगे चार्ज ऑन द बॉडी इज ne। ये जो है फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। द चार्ज ऑन द बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। n इज एन इंटीजर, n यहाँ पे इंटीजर है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, तो ये वैल्यू हमेशा n की जो होगी वो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो q इज इक्वल टू ne जो है ये फॉर्मूला है। अगर आपको किसी बॉडी पे चार्ज गिवन है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको ये बोला गया कि इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकालें इतने 100 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो बताओ बॉडी पे चार्ज कितना, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।